So this is part two of our lecture on 4+1 architectural view model. Uh, so I'm uploading a second part. I had a connectivity interruption, so we'll continue the same lecture with in the second in this second part or second video. Okay. Previously we've covered what architectural views are. Okay, we basically established okay, what do we mean by an architectural view. ठीक है और आर्किटेक्चरल व्यूज के टाइप्स क्या हैं हम किस तरह किसी व्यू को एज अ फिजिकल और डायनामिक या स्ट्रक्चरल व्यू में क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द टॉपिक इटसेल्फ के व्हाट 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल इज ठीक है ये एक आर्किटेक्चर है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो क्लिफ कर्टन ने प्रपोज किया था बेसिकली ठीक है तो रेशनल बिहाइंड दिस आर्किटेक्चर इज Philip Curtin sort of introduces an architecture which separates or partitions software system into multiple perspectives or multiple views. ठीक है तो according to Philip Curtin he says कि a monolithic model is ineffective for communication or describing a large scale software system basically. ठीक है ट्रेडिशनली जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं दे बेसिकली ट्रीट द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज वन सिंगल यूनिट ठीक है तो जिनको हम सिंगल मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स कहते हैं ठीक है दीज सिस्टम्स आर बेसिकली जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में इस्टेब्लिश किया है इंट्रोड्यूस किया है ये डिस्कस किया है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ठीक है ना अ यूजर would have a different perspective of a system from a developer ठीक है ना डेवलपर का perspective of the system would be entirely different from a user क्या कहते हैं end user a designer would have a different perspective a system engineer would have a different perspective ठीक है a client would have a different perspective a CI/CD engineer would have a different perspective a network engineer would have a different perspective a tester would have a different perspective. So it's better to encapsulate all those perspectives or views, all those state क्या कहते हैं stakeholder specific views in consideration when describing a software system. ठीक है तो this is what exactly this architecture does. ठीक है this architecture partitions basically a software system into discrete views, discrete stakeholder specific views and describe a system through all those perspectives. ठीक है ना plus one a scenario view which sort of ties all those perspectives together. ठीक है sort of क्या कहते हैं summarizes all those perspectives. ठीक है is a single unit in the use case view or perspective क्या कहते हैं scenario view. ठीक है so this sort of separation of concern become specifically important when you are dealing with or describing a medium to large scale system. Okay, it might not be relevant if you are describing a software system with a very limited scope. Okay, so might not be that relevant in that case. Okay, again it becomes fundamental this separation of concerns, this discussion of this treatment of every perspective is a discrete unit. Okay, it becomes very important and fundamental when describing or modeling large scale systems. Okay, so like we have said कि 4+1 architecture basically क्या करता है different स्पेसिफिक व्यूज में पार्टीशन करता है किसी भी सिस्टम आर्किटेक्चर सिस्टम का और फ्रॉम ऑल दोज लेंसेज इट सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब्स और कम्युनिकेट्स द सिस्टम. ठीक है तो स्टेक होल्डर्स एज यू कैन से कि जिस तरह प्रीवियसली भी हमने बात की है लास्ट पार्ट में कि स्टेक होल्डर्स कैन बी यूजर्स डेवलपर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स सिस्टम इंजीनियर्स CI/CD इंजीनियर्स. ठीक है तो what are those views which this system basically proposes? What are the actual views?
लेकिन आप कह रहे हैं कि भी 4+1 आर्किटेक्चर पार्टीशंस सिस्टम इनटू डिस्टिंक्ट व्यूज। तो व्यूज क्या हैं जो इंट्रोड्यूस कर किए हैं इस मॉडल ने? इसने 5 मॉडल्स बेसिकली। दिस आर्किटेक्चर इज proposing 5 स्टेक होल्डर स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव्स और 5 मॉडल व्यूज। ठीक है, व्यूज और आर्किटेक्चरल व्यूज आर टू इंटरचेंजेबल टर्म्स। ठीक है, जब हम व्यूज कहेंगे तो वी मीन के आर्किटेक्चरल व्यू, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में आर्किटेक्चरल व्यूज डिफाइन एंड डिस्कस किए हैं, तो व्यूज आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जस्ट अनदर टर्म। ठीक है ना, शॉर्ट एंड सॉर्ट ऑफ। ठीक है, so the 5 views this architecture introduces are logical view, development view, process view, and physical. So the system proposes these four views as main views of this architecture. Then it introduces one additional view जिसको +1 व्यू कह रहे हैं इस आर्किटेक्चर। ठीक है, उसको आप कहते हैं +1 भी कह सकते हैं, सिनेरियो व्यू भी कह सकते हैं, यूज केस व्यू भी कह सकते हैं। तो दीज 3 टर्म्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली फॉर द 5th व्यू ऑफ दिस आर्किटेक्चर। ठीक है, +1 व्यू, सिनेरियो और यूज केस व्यू। ठीक है, there are 4 main views, one additional view which sort of ties all other views together. ठीक है, and this 5th view is one of the most important views in this architecture, which this view is basically the reason why this entire system exists, why this entire description of all these views exist. ठीक है, so we individually बात करते हैं कि what logical view means in 4+1 architecture, what development view we means. ठीक है, तो we in subsequent slides we try to describe each individual view or architectural view in this architecture. ठीक है, we have a figure. We try to summarize these views in or explain these views through this figure. I'll try to explain what each and every view in this architecture is through this view, all the 5 views. ठीक है, तो explanation से पहले I'll sort of establish के क्या कहते हैं, जब भी हम किसी भी एक स्पेसिफिक व्यू की बात कर रहे हो, तो उस व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए I'll try to explain what this perspective exactly mean. ठीक है, and what UML tools you can use as UML packages you can use as tools uh, to model or visualize this perspective. ठीक है, to describe this perspective. ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक व्यू की हम बात कर रहे हैं तो पहले हम तो ये बात करेंगे कि इस व्यू का मतलब क्या है। ठीक है, इस 4+1 आर्किटेक्चर में लॉजिकल व्यू का क्या मतलब। ठीक है, वी सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब दिस, देन फॉर ईच व्यू ट्राई टू, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं आउटलाइन इज लोडेड विद यूएमएल पैकेजेस, वी साथ साथ वी ट्राई टू ये एक्सप्लेन और मैप हमारे क्या कहते हैं जो भी डायग्राम्स हैं जितने हम पढ़े हुए हैं या जितना हम पढ़ेंगे सेशनल एग्जाम 2 के बाद, तो कौन सा डायग्राम, कौन सा इंडिविजुअल यूएमएल डायग्राम would become a tool of utility in which view or which diagram would help us model or describe a system from what perspective. ठीक है, तो ये 2-3 गोल माइंड में लेके वी स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आई हैव डेडिकेटेड स्लाइड्स फॉर ईच व्यू बेसिकली, लेकिन यू कैन रीड द टेक्स्ट ऑन योर ओन। मैं उस फिगर के थ्रू ट्राई टू एक्सप्लेन दीज व्यूज। ठीक है, I'll try to explain these views through the figure mentioned above. सही है, तो let's start with logical view. ठीक है, logical view basically tries to describe a system's object oriented composition. ठीक है, logical view describe what object oriented composition a system is. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन का मतलब है कि इस सिस्टम के डोमेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हर डोमेन ऑब्जेक्ट की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है। डोमेन ऑब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि मतलब आसान लफ्जों में मतलब ये है कि क्लासेस क्या क्या, क्लास इसके डोमेन के क्लासेस क्या है, क्लासेस कौन सी बनेंगी, हर क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या हो। ठीक है, तो दिस व्यू बेसिकली ट्राइज टू establish के what domain objects this system would have, हर डोमेन ऑब्जेक्ट का हर डोमेन ऑब्जेक्ट के
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। और इस सिस्टम में ये तमाम डोमेन ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। क्या डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं, हर इंडिविजुअल डोमेन ऑब्जेक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है सिस्टम में, और आपस में ये तमाम ऑब्जेक्ट्स किस तरह इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, क्या रिलेशन, व्हाट रिलेशनशिप्स डू एग्जिस्ट, ठीक है, अमॉन्ग दीज क्लासेस, व्हाट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट, ठीक है, और उन रिलेशनशिप्स की टाइप क्या है, कार्डिनलिटी क्या है। So this view basically describe entire this perspective, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द डोमेन ऑब्जेक्ट्स, आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट रिलेशनशिप्स डू एग्जिस्ट, और उन रिलेशनशिप्स की टाइप्स एंड कार्डिनलिटीज, लाइक एग्रीगेशन, कौन से क्लास और कौन से क्लास के दरमियान एग्रीगेशन है, कहाँ कहाँ पोजीशन है, क्या मल्टीप्लिसिटी है किस एसोसिएशन की, ठीक है। तो यू कैन ऑलरेडी गेस के इस पर्सपेक्टिव से सिस्टम को डिस्क्राइब करने में व्हाट यूएमएल डायग्राम यू कैन यूज, ठीक है। तो क्लास डायग्राम जिस जो हमने थर्ड वीक में पढ़ा है, शायद थर्ड या फोर्थ वीक में, ठीक है। तो क्लास डायग्राम कैन बी कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू डिस्क्राइब अ सिस्टम फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, सिस्टम फ्रॉम अ डिजाइनर्स बेसिकली पर्सपेक्टिव, ठीक है। लॉजिकल व्यू इज अ कॉन्सेप्चुअल व्यू, तो आप यहाँ लेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि ये दो व्यूज को कॉन्सेप्चुअल व्यू कह रहे हैं। देन दे आर इन दो व्यूज को, डेवलपमेंट और फिजिकल व्यू को फिजिकल लेयर का नाम है। तो इस आर्किटेक्चर के चार मेन व्यूज हैं प्लस वन सिनेरियो व्यू है, ठीक है। इस चार में से प्रोसेस एंड लॉजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यूज, बेसिकली डेवलपमेंट एंड फिजिकल एंड डेवलपमेंट आर फिजिकल व्यूज। इस बात का क्या मतलब है, यू मतलब आसान मतलब है कि यहाँ पे आप सिस्टम की एक लॉजिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि उसके लॉजिकल यूनिट्स क्या हैं, क्लासेस आर नॉट नॉट फिजिकल एंटिटीज ना। लेकिन जब आप डिप्लॉय डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मीन आप क्या कहते हैं, फिजिकल सॉफ्टवेयर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लॉजिकल यूनिट्स को फिजिकल रियलिटीज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। So this distinction of conceptual and physical would become much more clearer as we move on in this discussion. ठीक है। लॉजिकल व्यू के बाद अगर मैं प्रोसेस व्यू की या पहले डेवलपमेंट व्यू को आपको डिस्क्राइब करूं, तो डेवलपमेंट व्यू मींस के डेवलपमेंट व्यू इज इंटरेस्टेड इन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्चुअल फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, द लाइन ऑफ कोड्स व्हिच मेक द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दिस व्यू, इसके जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं क्या हो सकते हैं, डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स, ठीक है। डेवलपमेंट व्यू इज अ व्यू, तो जिस तरह हमने कहा है कि एवरी व्यू इज एन स्टेक होल्डर स्पेसिफिक व्यू, तो यहाँ पे वो स्टेक होल्डर क्या है, जिसके लिए जो सिस्टम को इस जाविये से देखेगा, जिसका सिस्टम के लिए पर्सपेक्टिव ये होगा, वो प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स, ठीक है। तो डेवलपमेंट व्यू में द स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देन मूविंग ऑन, आपके पास क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट व्यू में आप सिस्टम को डिस्क्राइब कर क्या कहते हैं, मॉडल कर सकते हैं, द यूएमएल पैकेज विच बिकम टूल ऑफ यूटिलिटी इन दिस व्यू बेसिकली इज कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है ना। यू कैन यूज कंपोनेंट डायग्राम टू capture the development perspective or implementation perspective of a system, ठीक है। कंपोनेंट डायग्राम वी हैव नॉट कवर्ड येट, लेकिन विल डू आफ्टर सेशनल एग्जाम 2। यहाँ पे जो यूएमएल पैकेज यूज होगा, दैट इज कंपोनेंट डायग्राम बेसिकली, सही है। इन द प्रोसेस व्यू द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड, the system's use cases or functional requirements के execution flows are basically described. Behavior of the system, basically this process view tries to model the behavior of the system on the run, ठीक है। रन टाइम बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहा होगा सिस्टम का, कि कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होगी, कहाँ पे कंकरेंसी होगा, कहाँ पे कोई डिसीजन की जरूरत होगी, लेट्स से कि द पेन एंटर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो दिस इज अ डिसीजन पॉइंट ना।
तो कहाँ पे ब्रांचिंग है, कहाँ पे क्या कहते हैं, किस तरह एक सर्विस या फीचर डायनामिकली रियलाइज होता है ऑन द रन, ठीक है, और उसमें कहाँ फ्लो का स्ट्रक्चर किस तरीके का। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेस व्यू सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइब द सिस्टम्स बिहेवियर ऑन द रन, ठीक है। एंड फिजिकल व्यू, हम इनके एग्जांपल्स वाले स्लाइड्स पे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जस्ट टू समराइज एट अ ग्लांस के हमारे पास इस आर्किटेक्चर में तमाम व्यूज क्या है। तो द फिजिकल व्यू इज द पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे आप क्या कहते हैं, द स्टेक होल्डर्स इन दिस व्यू आर इंटरेस्टेड इन डिप्लॉयमेंट बेसिकली ऑफ द सिस्टम, डिलीवरिंग द सिस्टम टू द एंड यूजर, ठीक है ना। द स्टेक होल्डर्स इन दिस व्यू आर इंटरेस्टेड इन कि वेयर वुड द सिस्टम इवेंचुअली लिव, ठीक है, जो सिस्टम आपने कंस्ट्रक्ट किया है फिजिकली, ठीक है, वो सिस्टम इवेंचुअली जाके रहेगा कहाँ पे, ऑन विच फिजिकल डिवाइसेस, ऑन विच सर्वर्स एंड व्हाट नॉट्स दिस सिस्टम वुड इवेंचुअली लिव, ठीक है ना। इसको कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, इसको अपने एंड यूजर्स तक किस तरह पहुंचाएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स बेसिकली कैन बिकम यूज ऑफ यूटिलिटी इन दिस व्यू। प्रोसेस व्यू पे हमने क्या कहते हैं डायग्राम्स की बात नहीं की, तो प्रोसेस व्यू को मॉडल करने के लिए, प्रोसेस व्यू में सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर ऑन द रन डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट यूएमएल पैकेजेस यू कैन यूज, यू कैन यूज एक्टिविटी डायग्राम्स, यू कैन यूज सीक्वेंस डायग्राम्स, कोलेबोरेशन डायग्राम्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, आप क्लास डायग्राम या ऑब्जेक्ट डायग्राम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन या कंपोनेंट डायग्राम यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप सीक्वेंस एंड एक्टिविटी डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सिनेरियो इज द एडिशनल प्लस वन व्यू विच बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव ट्राइज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। यूजर्स पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि यूजर को क्या सेट ऑफ फीचर्स, क्या सेट ऑफ फीचर प्रोवाइड किए जा रही हैं यूजर को, व्हाट सर्विसेज दिस सिस्टम वुड प्रोवाइड, और वो सर्विसेज किस तरह रियलाइज होती है बेसिकली, ठीक है ना। आई हैव अ लेग, आई ट्राई पॉज फॉर अ मिनट। तो सिनेरियो व्यू पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो द एडिशनल व्यू जिसको प्लस वन सिनेरियो या यूज केस व्यू कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू समराइज कि इस व्यू का एग्जैक्ट मकसद क्या है बेसिकली, this view basically tries to uh, capture what important workflows this system must support, ठीक है ना। क्या सिनेरियोज किन यूज केसेस को इस सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, और किस तरह क्या कहते हैं वो की फंक्शंस क्या कहते हैं रन करेंगे ऑन द सिस्टम, ठीक है ना। दिस व्यू बेसिकली वैलिडेट्स योर आर्किटेक्चर के व्हाट की फंक्शन, व्हाट की फीचर्स द सिस्टम, जब रिक्वायरमेंट में आपने लिस्ट जो की फंक्शंस या वो हैं यूज केसेस हैं या सिनेरियोज हैं, उन तमाम की फंक्शंस को क्या आपका डेवलप्ड आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है नहीं करता, ठीक है। तो इस यूज केस या सिनेरियो व्यू को आप क्या कहते हैं मॉडल करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, यू कैन यूज द यूएमएल पैकेजेस, यू कैन यूज आर जो इसमें के की चॉइसेस हैं वो यूज केस डायग्राम एंड सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, ठीक है ना, नॉट सीक्वेंस डायग्राम बट सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम which treats system as one unit, ठीक है ना। वो उसकी कंपोजिशन इनटू ऑब्जेक्ट्स नहीं करता, डिकम्पोजिशन इनटू ऑब्जेक्ट्स नहीं करता, जैसे सीक्वेंस डायग्राम में आप क्या कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन मैप कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये उसी की बेसिकली समरी है कि आपके पास लॉजिकल व्यू में आप डायग्राम्स क्या यूज कर सकते हैं, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर, जो हमारे आउटलाइन वी वुड नॉट डिस्कस दिस यूएमएल पैकेज इन इन आवर करंट आउटलाइन, ठीक है। देन प्रोसेस व्यू में आप सीक्वेंस डायग्राम्स, कम्युनिकेशन डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, कोलैबोरेशन डायग्राम्स, ये तमाम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन डायग्राम्स आर अनदर नेम फॉर कोलैबोरेशन डायग्राम बेसिकली,
ठीक है ना। यहाँ पे आप सिनेरियो व्यू में, ठीक है, सिनेरियो व्यू में यूज केस डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, यूएमएल पैकेजेस जो हम पढ़े हुए हैं, यूजर स्टोरीज यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा सिस्टम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट व्यू, ठीक है ना। दिस व्यू गोज बाय इम्प्लीमेंट नेम, इम्प्लीमेंटेशन व्यू और डेवलपमेंट व्यू, यू कैन, ठीक है। इसमें आप कंपोनेंट या पैकेज डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, जिसमें से कंपोनेंट डायग्राम्स विल कवर इन दिस आउटलाइन, ठीक है, इन दिस कोर्स, ठीक है। एंड लास्टली, जैसे हमने कहा है कि फिजिकल व्यू में आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो यूएमएल पैकेज नहीं है, हम स्ट्रिक्टली यूएमएल डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा, आई वोंट रीड आउट दिस टेक्स्ट फॉर यू, ठीक है ना। आई एक्सप्लेन के लॉजिकल व्यू क्या है थ्रू दिस फिगर। I'll just conclude every view discussion on every view within example। जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो व्हाट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ इट्स लॉजिकल व्यू। तो एक ठीक है, जैसे हमने कहा है कि लॉजिकल व्यू मींस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिस्टम में क्या सेट ऑफ क्लासेस होंगी, डोमेन व्हाट आर द डोमेन ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस सिस्टम। तो डोमेन ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे, क्या बन सकती हैं, बुक, मेंबर, लाइब्रेरियन, लोन, रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो इसकी कंप्लीट एक मॉडलिंग, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल व्यू, कंप्लीट लॉजिकल व्यू डिस्क्रिप्शन, ये लॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन मींस के डोमेन ऑब्जेक्ट्स पे क्या होंगे, डोमेन ऑब्जेक्ट्स की एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और आपस में ये तमाम ऑब्जेक्ट किस तरह रिलेटेड होंगे और उन रिलेशंस की टाइप एंड कार्डिनलिटी क्या हो, ठीक है। तो लॉजिकल व्यू आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की यूजिंग क्लास डायग्राम, ठीक है ना। सो दिस इज अ लॉजिकल व्यू ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। दिस इज डिस्क्राइबिंग द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। डिजाइनर वुड बी द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर इन दिस केस, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपोजिशन ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है ये डायग्राम, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इस डोमेन में, हर ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह रिलेटेड हैं, जिस तरह से एटीएम आइडेंटिफाइज एटीएम ट्रांजैक्शंस, बैंक हैज कस्टमर्स, ठीक है, बैंक मैनेजेस डेबिट कार्ड्स, और हर ट्रांजैक्शन की यू कैन सी के cardinalities भी mentioned है। So this is a complete description of the library management system from, sorry, this is for ATM, sorry, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का नहीं है, दिस इज फॉर इन एटीएम। तो एक एटीएम एप्लीकेशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम लॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उस क्या कहते हैं, डोमेन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उस डोमेन के हर ऑब्जेक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है, आपस में ये तमाम ऑब्जेक्ट्स किस तरह रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम दूसरे मूविंग मूविंग ऑन, ठीक है ना, हमारे पास नेक्स्ट व्यू है प्रोसेस व्यू। एज डिस्क्राइब्ड के प्रोसेस व्यू इज बेसिकली, process व्यू basically describe the system's behavior on at the runtime, ठीक है ना। How does the system behave while running, ठीक है। The process view would be in the process view, the stakeholders would be concerned with the concepts like concurrency, synchronization, parallelism, how the events and signals are what sort of event handling mechanism the system has, ठीक है। How does it support synchronous and asynchronous communications, ठीक है। तो इस इन इंडिविजुअल concepts को we have touched in sequence and activity diagrams। तो यहाँ पे parallelism को, concurrency को, ठीक है, event handling को दोबारा जाहिर सी बात है इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस प्रोसेस इज बेसिकली कैप्चर्ड through this process is basically described using the typical choice of UML for describing a system from process view
sequence diagrams and activity diagrams, ठीक है ना. इसके अलावा in some context you can use state chart diagrams and communication diagrams are basically collaboration diagrams, and these are very similar to sequence diagrams, ठीक है ना. They are also type of interaction diagrams basically, ठीक है. So this example basically suggests if you have an ATM application, what is the process view of cash withdrawal within an ATM application, ठीक है. The stakeholder would be interested in कि जब एक end user ATM application यूज करते हुए कैश विड्रॉल करना चाहता है, तो जब वो कार्ड आके इंसर्ट करता है तो व्हाट वुड हैपन आफ्टर द कार्ड इंसर्शन. एटीएम एप्लीकेशन या एटीएम फिजिकल एटीएम सिस्टम किस तरह बैंक सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, कहाँ पे उसको बैंक सर्वर से कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, ठीक है ना. कहाँ पे इसको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे इसको ब्रांचिंग की जरूरत पड़ेगी, कंडीशंस वेरीफाई करने की जरूरत पड़ेगी. जैसे कि अगर वो ऑथराइजेशन कर रहा है तो इट चेक्स if a pin enter the pin is valid or not, ठीक है ना. if the ATM is if जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है it has certain number of amount जो निकालना चाह रहा है एंड यूजर, ठीक है. तो आप प्रोसेस व्यू को कैप्चर कर सकते हैं either using activity diagrams or sequence diagrams. These are the two most popular choice of diagrams in this view, ठीक है. जैसे यहाँ पे फिल ऑर्डर करने के बाद पैरेललिज्म हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म इज कैप्चर्ड, तो किस तरह सिस्टम हैंडल्स के पैरेललिज्म, किस तरह सिस्टम हैंडल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दोस टू पैरेलल इवेंट्स, ठीक है. कहाँ पे ब्रांचिंग का और ये है, कहाँ पे इन ब्रांच को मर्ज करने की जरूरत है, ठीक है. तो जो बातें हमने यहाँ मेजर कंसर्न्स में मेंशन किए हैं ना, यू कैन सी के दे आर modeled through this activity diagram. So this is basically branching, this is basically parallelism. यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उन पैरेलल पाथ्स को, ठीक है. यू कैन यूज सीक्वेंस डायग्राम्स. उसके बाद यू हैव डेवलपमेंट व्यू. डेवलपमेंट व्यू बेसिकली कंसर्न विद के हाउ द सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना. बेसिकली, ठीक है. सिस्टम, जाहिर सी बात है, इज अ सिंगल फाइल ऑफ कोड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड लाइक एज अ सिंपल फाइल ऑफ कोड, ठीक है ना. तो एक कोई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एम्प्लॉय क्या होगा, तो उस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मींस के किस तरह सिस्टम को मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में, मॉड्यूल्स में, लेयर्स में तोड़ के फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान की होगी. तो व्हाट आर दोस मॉड्यूल्स, व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स बेसिकली, ठीक है. So development views basically describes how the system is organized for development. ठीक है. The most popular तरीका है to type of organization इसके आप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कोड को, अपने इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक को, ठीक है. Then you implement individual components and employ a integration policy or integration strategy, ठीक है. Basically this view is concerned with कि किस तरह source code is basically organized. Source code को आप किस तरह organize कर रहे हो, ठीक है ना. source code cannot be for a large scale system an entire one single file of code, ठीक है. तो उसको पैकेजेस में, मॉड्यूल्स में, कंपोनेंट्स में, मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड सब सिस्टम्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है. बेसिकली उस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट व्यू डिस्क्राइब करता है, ठीक है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कैरियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, तो कैरियर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रॉम अ डेवलपमेंट व्यू उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है कि इस पूरे एंटायर सिस्टम के क्या सब मॉड्यूल्स हैं, किस तरह इसके सोर्स कोड को किस तरह के मीनिंगफुल मॉड्यूल्स में तोड़ा जा सकता है. तो लेट्स से कि इसके मीनिंगफुल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं. यूजर मैनेजमेंट, career development should support user management. It should have a resume builder component. It should have a analytics component, a messaging or a job matching component. तो ये इन मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में आप इस सिस्टम को तोड़ के एक क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं. तो दिस व्यू इज बेसिकली कंसर्न विद सोर्स कोड को किस तरह मैनेज एंड ऑर्गेनाइज किया जाए.
जा रहा है, जा सकता है। ठीक है। फॉर दिस यू कैन यूज कंपोनेंट और पैकेज डायग्राम्स। ठीक है। तो हम इनके नोटेशनल उस पर ज्यादा नहीं जाते क्योंकि वी हैव नॉट कवर्ड कंपोनेंट डायग्राम्स। पैकेज डायग्राम शायद हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन कंपोनेंट डायग्राम्स विल कवर आफ्टर सेशनल 2 एग्जाम्स। ठीक है। तो कंपोनेंट डायग्राम्स कैन बी यूज्ड एज टूल ऑफ यूटिलिटी इन दिस व्यू बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा आपके पास है लास्टली जो मेन लास्ट वो है, जो हमारे पास एक फिफ्थ व्यू भी है, लेकिन द लास्ट मेन व्यू आउट ऑफ 4 व्यूज आपके पास फिजिकल व्यू है। Physical view is basically in very simple terms is interested in, okay, where would the software run, ठीक है ना, where would the software live in the real world, ठीक है ना, कहाँ इसको आप डिप्लॉय करेंगे बेसिकली, how the system is deployed बेसिकली, इसकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, सिस्टम को कैसे और कहाँ डिप्लॉय करना है। तो फिजिकल व्यू इज कंसर्न विद कि सिस्टम इवेंचुअली कहाँ पे और कैसे डिप्लॉय हो। ठीक है। तो इस व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए वो, ठीक है ना, बेसिकली इट डिफाइंस के नेटवर्क टोपोलॉजी और क्या होगा सिस्टम का, बेसिकली क्या कहते हैं, अ, किन सर्वर्स पे होगा, आपस में ओवर द नेटवर्क किस तरह कम्युनिकेट करेंगे मल्टीपल डिफरेंट नोड्स। ठीक है। जिस तरह आप सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट क्या है, तो इस तरह आप क्या कहते हैं फिजिकल व्यू में अपने सिस्टम को नोड्स में, हार्डवेयर नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके एक डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। ठीक है ना। बेसिकली द फिजिकल व्यू इज कंसर्न के सिस्टम इवेंचुअली कहाँ पे रहेगा, बेसिकली वेयर वुड द सिस्टम इवेंचुअली लिव। ठीक है ना। व्हाट ऑन व्हाट मशीन्स और डिवाइसेस डज द सिस्टम एक्चुअली एग्जीक्यूट। ठीक है ना। किन एनवायरमेंट्स में, किन मशीन्स में जाके फिजिकली चलेगा ये सिस्टम जब आप उसको डिलीवर करेंगे टू द एंड यूजर्स। ठीक है ना। और ओवर द नेटवर्क किस तरह, कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करके कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपके मल्टीपल नोड्स। ठीक है। ये फिजिकल व्यू बेसिकली organizes one system into multiple executable और सॉरी डिप्लॉयबल नोड्स। ठीक है। जैसे कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम है तो एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल नोड्स, जैसे कस्टमर ऐप, मोबाइल ऐप हो गया, रेस्टोरेंट मैनेजर के पास एक वेब पोर्टल होगा या उसके पास भी अपना एक ऐप होगा उस सिस्टम को यूज करने के लिए। देयर वुड बी अ बैकएंड सर्वर, देयर वुड बी अ डेटाबेस सर्वर, देयर वुड बी नोटिफिकेशन सर्विसेज। ठीक है। तो ऑल दीज नोड्स बेसिकली वुड बी डिप्लॉयड वेयर, ठीक है ना, और कहाँ पे रन टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना। किन एनवायरमेंट्स में, किन डिवाइसेस पे ये, किन मशीन्स पे बेसिकली रन करेंगे मुख्तलिफ नोड्स। ठीक है ना। जब कस्टमर अपने ऐप से यूआई के एलिमेंट कलेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये क्या कहते हैं ओवर द नेटवर्क कैसे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट वेब पोर्टल पे अलर्ट भेजेगा। ठीक है। और किस तरह आपस में डिफरेंट नोड उस इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल व्यू को आप क्या कहते हैं मॉडल कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम वुड लुक लाइक दिस, के जिस तरह के मल्टीपल जैसे ये नोड्स हैं तो इस तरह these symbols basically represent nodes. We'll cover deployment diagrams. ठीक है। Then तो फाइनली हमारे पास द प्लस वन और सिनेरियो व्यू है। ठीक है। जो फिफ्थ व्यू ऑफ द आर्किटेक्चर है, दिस इज बेसिकली अ यूजर सेंट्रिक लेयर इन द आर्किटेक्चर और यूजर सेंट्रिक व्यू which basically it's a validation basically, and it validates what important or what key workflows the system must support, what key scenarios or use cases the system must support। ठीक है ना। it validates कि क्या आपके पास की यूज केसेस हैं, क्या की अपने what आप अपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में what key functional requirements you have listed, either the system or the architecture supports those use cases or not। ठीक है। this is the most critical layer basically। ठीक है ना। The system only exists because you're trying to provide your potential end users some services। ठीक है। You're trying to meet some user goals।
those user goals are documented in terms of use cases or scenarios. ठीक है? If the system does not support the real scenarios, if the system does not support the workflows or required for certain use cases, then the architecture or the system would be of no use basically. ठीक है ना? सही है। आप +1 व्यू और सिनेरियो व्यू को मॉडल या डिस्क्राइब कर सकते हैं। द पॉपुलर चॉइस और टिपिकल यूएमएल डायग्राम्स जो यूज हो सकते हैं इस व्यू या इस लेयर ऑफ आर्किटेक्चर में। मोस्ट पॉपुलर चॉइस आर यूज केस एंड सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स। ठीक है ना, यूज केस डायग्राम्स एंड सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स बेसिकली। ठीक है, यू कैन यूज एक्टिविटी डायग्राम्स इन सम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको मजीद इन वन स्टेप फर्दर किसी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट या किसी भी यूज केस के तमाम वर्किंग फ्लो को भी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट या डिस्क्राइब करना है, तो यू कैन फर्दर यूज एक्टिविटी डायग्राम्स एज वेल। ठीक है, तो दिस इज अ यूजर सेंट्रिक वैलिडेशन लेयर ऑफ द आर्किटेक्चर बेसिकली। ठीक है, so it's very critical view, a very critical aspect of the system. It describes a very critical aspect of the system. Okay, either the architecture support the documented functional requirements, either the architecture it sort of validates either the architecture supports the major workflows in the system. Okay, now does the architecture support the described user goals or not? Okay, the architecture is useful only if it supports real scenarios. ठीक है, तो it validates uh, the real scenarios, if the validates the fact that if the architecture supports or not the real scenarios, supports the real scenarios or not. ठीक है ना? It's basically a repeated slide, so you can use, जैसे कि कहा है, use case diagrams, जैसे कि कि यहाँ पे this use case diagram is basically listing all the functional requirements required for the system. ठीक है ना, ये तमाम वो यूज केसेस एंड सिनेरियोज हैं दिस सिस्टम मस्ट सपोर्ट। आप इसकी क्या कहते हैं मजीद वर्किंग फ्लो जनरेट करने के लिए यू कैन यूज एक्टिविटी डायग्राम्स टू फर्दर वेरीफाई के क्या कहते हैं योर एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर सपोर्ट्स दीज की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉट। ठीक है, now in the subsequent slides sort of we have come टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। ठीक है ना, मैंने मजीद क्या क्या है नीचे के इन तमाम व्यूज को बेसिकली इन टेबल्स ब्रीफली समराइज किया हुआ एंड एक यूज केस के थ्रू, ठीक है ना, ये तमाम व्यूज एंड इस इंटायर आर्किटेक्चर को बेसिकली डिस्कस किया है थ्रू एग्जांपल्स फॉर योर सेल्फ स्टडी बेसिकली। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं इन केस स्टडीज को और केस स्टडीज को और एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो टू फर्दर योर रीइंफोर्स योर कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इस इंटायर लेक्चर में। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रू दिस केस स्टडी बेसिकली, आई एम लीविंग इट फॉर यू टू प्रैक्टिस एज एन एग्जांपल। ठीक है, थैंक यू।